नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में आयोजित संगीत और हास्य कार्यक्रम। हिस्ट्री और फिजिक्स की परीक्षा में जिले भर से 18,712 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। साइबर सुरक्षा नीति जल्द, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस 7 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देगी, डीके शिव कुमार ने कहा। भाजपा ने पाक समर्थक नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। राज्य सरकार के कर्मचारियों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अवसर पर मंगलवार शाम को शहर के रंग मंदिर में आयोजित संगीत और हास्य कार्यक्रम में कर्मचारी नाचते गाते नजर आए। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गंगे समेत पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने संगीत की धुन पर मंच पर कदम डालकर ध्यान खींचा। जहां कलाकार नागराज जोगी ने संगीत का तड़का लगाया, वहीं कलाकार नवलिंग पाटिल ने कॉमेडी का तड़का लगाया। संगीत और कॉमेडी के साथ मनोरंजन, संगीत और कॉमेडी कर्मचारियों को प्रसन्नतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने में मदद करते हैं। जिला सर्जन डॉक्टर महेश बिरादर ने कहा। उन्होंने कहा कि दबाव में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए संगीत और कॉमेडी मानसिक व्यायाम की तरह है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಂಜೀವರ ಮೇಲೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿರಿ. ಇವರು ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಶೀಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಟೋಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬಂದಿರಿ, ಏನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಥರ ಏನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು 2 ದಿವಸ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌತಮ್ ಮರಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಈ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಡಿಗೆ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ರಣ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹ ಸೋರಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾರೇನೋ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಇದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೋವರೆಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಂದಗಿ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ। राज्य भर में पीयूसी सेकेंड ईयर की वार्षिक परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें आज हिस्ट्री और फिजिक्स की परीक्षा थी। बीदर जिले में हिस्ट्री के पंजीकृत विद्यार्थी की संख्या 6,926 थी। कुल 5,959 विद्यार्थी हाजिर रहकर परीक्षा दिए, बाकी 957 गैर हाजिर रहे। इसी तरह फिजिक्स विषय के लिए कुल 13,050 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 12,743 विद्यार्थियों ने परीक्षा लिखी, तो वहीं 308 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा तय समय पर शुरू और खत्म की गई। इस बीच केंद्रों के बाहर पुलिस तैनात रही। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का अव्यवहार नहीं होने की बात डीडीपीओ विभाग ने बताई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही साइबर सुरक्षा नीति लागू करेगी। वह साइबर क्राइम समिट 2024 का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। परमेश्वर ने कहा, राज्य के सभी जिलों में संचालित 43 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार साइबर अपराध विभाग को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कंपनियों की मदद लेगी। परमेश्वर ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीआईडी कार्यालय में स्थापित साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च CCITR में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पुलिस, न्यायपालिका और भारतीय रक्षा बलों के 33,000 से अधिक कर्मियों को लाभ हुआ है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 मार्च को नई दिल्ली में होगी, जहां कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ बैठक की। राज्य कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने कहा, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की अंतिम बैठक 7 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मैं 7 मार्च को दिल्ली जा रहे हैं, जहां हम उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देंगे। भाजपा पदाधिकारियों की एक टीम ने 27 फरवरी को कथित पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा महासचिव NS नंदिशा रेड्डी, दोडबल्लापुर विधायक धीरज मुनिराजू और पार्टी पदाधिकारी चीना रामू की शिकायत विधानसौदा स्टेशन के निरीक्षण को संबोधित थी। शिकायत में हुसैन पर अपने समर्थकों को विधानसौदा परिसर में नारे लगाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया और मांग की गई कि उन्हें FIR में पहले आरोपी के रूप में नामित किया जाए। सोमवार को पुलिस ने हावेरी जिले के बैडगी से मोहम्मद नाशीपुरी को गिरफ्तार किया। जयमहल बेंगलुरु से मुनव्वर अहमद और किशनगढ़ दिल्ली से मोहम्मद इल्तास को नारेबाजी के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकाल के दौरान राज्य आतंकवादी बंदरगाह था। पिछली सरकार ने राज्य में आतंकवादी कृत्यों से बचने के लिए क्या किया? रेड्डी ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में विस्फोट और पाकिस्तान समर्थित नारे के आरोपों के बाद कांग्रेस सरकार के खिलाफ आलोचना का जवाब देते हुए पूछा। मंत्री ने कहा, मैं बेंगलुरु में हुए बम विस्फोट को उचित नहीं ठहरा रहा हूँ। जो लोग विस्फोट में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए और आदर्श सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल की तुलना में कांग्रेस सरकार में आपराधिक गतिविधियों में गिरावट आई है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 6 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। जब बीजेपी सरकार थी तो चिन्नास्वामी स्टेडियम, मल्लेश्वरम एयरपोर्ट और मंगलुरु के पास धमाके हुए थे। बीजेपी सरकार की राह में आतंकवादी थे। बम धमाके और भाजपा की तुलना में हमारे कार्यकाल में आपराधिक गतिविधियां बहुत कम रही है। अगला, हम पूर्ण नियंत्रण लेंगे। पुलिस को पता है कि क्या करना है। क्या उन्हें सभी भाजपा सदस्यों को अपना काम करने के लिए कहना चाहिए? भाजपा, जिसका लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में महत्वपूर्ण जीत हासिल करना है, अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बसवराज बोम्माई और जगदीश शेट्टार को नामांकित कर सकती है। दोनों प्रमुख लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिन्हें पार्टी का मुख्य वोट माना जाता है। इस बारे में संकेत देते हुए पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बोम्माई और शेट्टर समेत राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा हुई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा ने यह भी संकेत दिया कि भाजपा कर्नाटक में अपने गठबंधन सहयोगी जेडीएस को 2 से 3 सीटें आवंटित कर सकती है, जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विभिन्न राज्यों के भाजपा नेता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति से पहले शाह और नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें मोदी और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बेंगलुरु में जल संकट के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि हेमावती नदी के पानी का इस्तेमाल राज्य की राजधानी के लिए किया जाना चाहिए। बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि बेंगलुरु के लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है, क्योंकि पानी की कमी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पानी के टैंकरों की कीमतें आसमान छू रही है। यदि सरकार कावेरी से पानी उपलब्ध नहीं करा सकती है तो उसे हेमावती से पानी उठाकर बेंगलुरु को आपूर्ति करने दे।
वे भी मेरे लोग हैं और हासन, तुमकुरू आदि गांव में हेमावती का पानी पहुंचाया जाना चाहिए। उपायुक्तों और जिला पंचायत सीईओ के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए गौड़ा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 10 महीनों में कितने सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया है। यह बेशर्मी है और सरकार की विफलता है। मौसम विभाग के अनुसार इस गर्मी में मार्च से मई तक कर्नाटक में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी आंतरिक हिस्सों में लू चलने की भविष्यवाणी की है। अधिकारियों ने कहा कि मार्च में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार नहीं कर सकता है और इस महीने सामान्य बारिश होने की भी संभावना है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार के कर्मचारियों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अवसर पर बीदर के रंग मंदिर में आयोजित संगीत और हास्य कार्यक्रम। हिस्ट्री और फिजिक्स की परीक्षा में जिले भर से 18,712 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। साइबर सुरक्षा नीति जल्द, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा। कर्नाटक कांग्रेस 7 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देगी, डीके शिव कुमार ने कहा। भाजपा ने पाक समर्थक नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद की गिरफ्तारी की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।